Hello, friends, and my dear students. I hope you all are fine and studying well. Today, in this class, we will study the first lesson of biology, that is class 7th ICSE board, and topic will be tissue. Before beginning of this chapter, we'll just recall our previous knowledge. Those who are new, kindly like, subscribe, and share this video so that it can reach all those who wants to study this tissue chapter of class 7 ICSE board. So in class 6, in your previous class, you might have been studied the animal cell and plant cell. As we know that the cell is the smallest unit in which which has a definite structure and it performs a specific function. All the living organisms which exist on this earth and they have life, means living things, they are made up with this cell. And if they are animals, so they will have animal cell, and if they are plant, so they will have the plant cell. Basically, when we talk about the cell, further it classified into unicellular and multicellular. So if you talk about a group of cell that form a tissue, okay, that will come under the multicellular organism. The organisms which have if you talk about plant cell or animal cell, if they are multicellular, they are only formed. The group is called tissue, okay. So that is actually a group of similar cell that perform a common function. So we will know more about that. What is tissue? What are different kinds of tissue? Okay, in Hindi we used to call it uttak. So today in this chapter we will study the learning words. First of all, in this book it is a given the learning words. So what is all this? So first of all, what is tissue? A group of similar cells. They are a group of cells. For example, a cell is the smallest unit of this large body, living things. It is the smallest unit. Similarly, just like this cell, different group of cells, if they come together, if they form, so they are called a tissue. Okay, they are a group of cells, similar cell. So if you talk about digestive system or respiratory organs, so they have that cells that is a same kind of function they perform, and they are their property, their characteristics same. All right. So this together they form a tissue, and all different types of tissue together they are forming a particular organ. An organ it forms a body. So in our human body, if you talk about the cell is the smallest unit, okay. So more focused on tissue. So these are the learning words, means you may say that definition or meaning of particular words which we have to learn. Anyhow, we have to learn to understand all the topic. We have to remember all these definitions, these meanings. So once again, a group of similar cells. Whenever tissue will come in your brain, you understand that a similar cell, okay, that performs a common function. Their function is common. Respiratory system, their function is common to respirate, takes part in respiration, and have a common origin, means their origin is same, okay, they belongs to same place, okay. Meristematic tissue. So here we are studying about meaning. Further I will explain how many types of tissues are. First of all, we will know about meristematic tissue. It is composed of a group of similar cell. In meristematic tissue, it is composed of a similar cell and which have the capacity to divide and form new cells. इस मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता क्या है कि इसके पास क्षमता होती है, इसके पास कि ये क्या होता है, ये डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल अब लिविंग बींग्स है,
फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट लेट इट। सो इसमें क्या होता है, ये डिवाइड करेगा अपने समान दूसरे मतलब दूसरे पेंसिल्स का, इफ दिस इज लिविंग थिंग्स एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग। सो इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म अ न्यू सेल, जस्ट लाइक प्रोटीन. A protein forms a new cell. It has ability to form new cells. It repair new cells. Proteins, you do remember in class 6 we have studied class 6 and 5. So just like that, meristematic tissue. Next, permanent tissue. They are derived from the meristematic tissue. Means this permanent tissue has come from meristematic tissue and comprising of non-dividing cells. For example, as I told you in the beginning, that meristematic tissue it has capacity to divide, but लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये डिवाइड नहीं करते हैं ये सेल्स. ठीक है. वेस्कुलर टिश्यूज. कंडक्टिंग टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, डिसॉल्व मिनरल्स, xylem, food phloem from one part of the plant to other part. वेस्कुलर टिश्यू मीन्स इसमें होता क्या एक्चुअली, इनको हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं. मीन्स कंडक्ट कर रहा है, पास कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज़ इस हाथ में मैं होल्ड कर रही हूँ तो इसको हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसको हम पास कर रहे हैं इस हाथ में, दूसरे हाथ में, या किसी अपने दूसरे फ्रेंड को. अगर ए नाम का कोई लड़का है, अगर उसे हम कुछ स्वीट्स दे रहे हैं बांटने के लिए, तो वह क्या करेगा, अपना हिस्सा लेकर बाकी स्वीट्स को पीछे की तरफ पास करेगा, और दूसरे फ्रेंड को, फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह वो पूरे ग्रुप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस स्वीट्स का. सिमिलरली लाइक दैट, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनका मेन फंक्शन, वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं. इन टिश्यू का काम होता है कंडक्ट करना. क्या, तो वाटर, ठीक है, और डिज़ोल्व मिनरल. वाटर हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट है और मिनरल्स को डिज़ोल्व करता है. तो जाइलम और फ्लोएम ये वेस्कुलर टिश्यू है. ठीक है. तो जाइलम से आपको कनेक्ट करना है जड़. ठीक है. तो जड़ क्या करता है, जड़ में जाइलम टिश्यू पाया जाता है और वो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है, उसको पास करता है स्टेम से फिर लीफ और बाकी अदर ब्रांचेस में. सिमिलरली जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फूड से फ्लोएम, ठीक है, मीन्स आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, फूड से फ्लोएम ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. सो व्हाट हैपन्स इन दिस, तो जब लीव्स प्रिपेयर करते हैं फूड को, तो ये फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू है, ये टिश्यू का काम होता है कि इसको क्या, प्लांट के प्रत्येक हिस्से तक इसको पहुंचाना. अंडरस्टूड. कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव, दिस वर्ड इट सेल्फ इट डिफाइंड. कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट्स करते हैं, कैसे कनेक्ट, कैसे एक दूसरे में कनेक्शन का जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करते हैं. हाउ. So supporting and binding tissue which connects different tissues or organ of the body and form a packing material around them. For example, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन है कि सपोर्ट करना, बाइंड करना, एक बॉन्ड आपस में, क्या, एक बॉन्ड का निर्माण करना. ठीक है, आपस में एक रिलेशन का निर्माण करना. ठीक है. एंड डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म्स अ पैकिंग मटेरियल अराउंड देम. और इन टिश्यू का मेन काम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के ऊपर ये वुड का जो पेंसिल का जो कवरिंग है, पैकिंग का काम कर रहा है. सिमिलरली इसी प्रकार जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके फंक्शन होते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, सबके अभी हम लोग मीनिंग पढ़ रहा है. ओके, वी आर स्टडिंग ओनली मीनिंग एंड फर्दर वी विल स्टडी इन अ मोर डिस्क्रिप्टिव वे, सो डोंट वरी. रिजिड स्केलेटन सिस्टम एंड connective tissues which forms a framework of a body. About bone we have studied skeleton system of class 5, a very good, it is explained nicely in a ICSE board class 5. So bones क्या होता है actually, a rigid framework, it is skeleton system. ठीक है, और ये भी connective tissue ही है which forms a framework of a body. ये बॉडी का मतलब हमारे शरीर का जो ढांचा होता है, फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा, जो हमारे शरीर, जैसे कि एनिमल्स का एक ढांचा होता है पर्टिकुलर, उसी तरह जो ह्यूमन बींग्स है उनका एक अपना ढांचा होता है. तो ये बोन्स उसका निर्माण करते हैं, स्केलेटन सिस्टम, और जो भी ऑर्गन है हमारे शरीर के अंदर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, उसकी सुरक्षा करते हैं. नेक्स्ट, कार्टिलेज. कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट बोन्स. कार्टिलेज हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में पाया जाता है, और ये सॉफ्ट बोन्स, मतलब इन्हें सॉफ्ट बोन्स बोला जाता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान में, सॉफ्ट बोन्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जाती है इस कार्टिलेज की हेल्प से.
Yes, in class 5, I just want to show you the skeleton system. So, in previous class that I want to say about class 5. So, this is a skeleton system, okay, about bones. This is a particular framework of a body. And if you talk about the cartilage, so cartilage is situated, it is located here. This color you may see. And there is a ligament. Ligament is connects this bone to this bone. Okay? So we will study. So this is only the cartilage, just like grease. Okay, this is soft bone which provide the flexibility. For example, here if I am bending this, so this is because of that cartilage and ligament I am able to move my hand, and I got the flexibility in my hand to twist all around. Ligament also connective tissue that connects two bones, as I have explained you. Tendons. Tendons actually it is muscles, and in the same chapter we have studied about muscles. There are 600 muscles, and that tendons is a connective tissue that connects two muscles. Next, in involuntary muscles and voluntary, these are also a connective tissue. Involuntary muscles, I want to just recall for you. Involuntary, the muscles which are not in our control, that is called involuntary muscle. वैसे मसल, वैसे मांसपेशियाँ जो हमारे जो मीन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जिसका संचालन हमसे नहीं होता, वो अपने आप खुद ब खुद उनका संचालन होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मसल्स लाइक हार्ट का जो बीट है, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है कि रिमोट कंट्रोल हम उसको प्रेस करें और उसका काम शुरू हो गया, या हम कुछ चाहे फॉर एग्जांपल इस पेंसिल को मुझे उठाना है, तो ये मसल्स वॉलेंट्री मसल्स हमारे लिम्स हैं, हमारे अपर लिम्स लोअर लिम्स जो भी है, फिंगर्स हैंड जो भी है, तो ये वॉलेंट्री मसल्स है, ये हमारे कंट्रोल में है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि इस पेंसिल को मुझे उठाना है, तो देन आई विल टेक एंड होल्ड इट. लेकिन जो कार्डियक मसल्स है हमारे कंट्रोल में नहीं है. Adipose tissue, tissues that store fats in our body, that is called adipose tissue. Nerves tissue, tissues present in our brain and a spinal cord which receives signal. Once again, this is a backbone, and backbone is connected to our head just like this. From behind, actually this is from front, esophagus, okay, but from behind you will see that this backbone is connected from your head, okay, so that nerve tissues are here and they are sending the signals and messages to all the body parts, and spinal cords are here, so from this it is connected to all body parts and it's sending the messages. Next one is muscular tissue. Muscles, you are very familiar. So tissues that contractile and protile proteins and causes either pull or push action in our body. So tissues that are contractile, that is protein, my mistake, okay. Protein causes either pull or push. So muscles are only that what we say, same thing, double I have written, twice I have written. So it provides us support, okay, to pull anything, to push or action in our body because of the muscles only. Epidermal tissue, the tissue which is in the form of a continuous layer, and there are no intercellular space present in this epidermal tissue. The layers one upon the other, okay, they are connected with each other, and there is no intercellular space. Just like you have studied about the characteristic of matter, that is intermolecular space, means there is if you talk about solid, there is no intermolecular space. Similarly, just like this, no intercellular space, means in this epidermal tissue there is no intercellular space, means in between the cell there is no space. Simple. Histology, the study of tissue
that is called histology, and Xavier Mitchell introduced word tissue into the study of anatomy by 1801. Further, we have to study that tissue can be divided into two types. There are majorly the tissue has been divided into two types, that is plant tissue and animal tissue. And plant tissue that further divided into two more types, that is meristematic tissue and permanent tissue. And animal tissues are of four types, that is epithelial tissue, connective tissue, and nerves and muscles tissue. It is actually very long chapter, so few topics only we will cover today. So आज हम plant tissue पढ़ेंगे. So in this plant tissue you have to first of all draw this flow chart. कभी भी आप एग्ज़ाम्स में अगर आंसर लिखते हैं तो इस फ्लो चार्ट का उपयोग एकदम ज़रूर करें, और आप खुद याद रखने के लिए remembering for memorizing for yourself, then also you have to draw this. Okay, in short we can cover all these things. So meristematic tissue, that further classification according to their arrangement, मीन्स मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके अरेंजमेंट के आधार पे इसे हम लोग तीन हिस्से में बांटते हैं, दैट इज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. ठीक है. और परमानेंट टिश्यू, दैट मैच्योर सेल इनकेपेबल ऑफ डिवीजन. जो मैच्योर परमानेंट टिश्यू एक्चुअली होता है क्या, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, दैट मैच्योर सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन, दे कैन नॉट डिवाइड. And they further classified into simple and complex tissue. So simple जो tissue है उनका further classification क्या है, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. complex tissue जो vascular tissue हम लोगों ने जो लर्निंग वर्ड्स थे उसमें हम लोग vascular tissue में आपको समझाया था कि जाइलम और फ्लोएम क्या है. ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो अभी हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट, और यू हैव टू वॉच ऑल दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड इट थोरोली. आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना पड़ेगा. ठीक है. और आपको अगर कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो यू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. दिस टिश्यू कंटेन्ड थिन वॉल्ड. मेरिस्मेटिक टिश्यू इनके जो वॉल होते हैं बहुत थिन होते हैं. अनडिफ्रेंशिएटेड एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और इनके जो सेल होता है एक्टिवली डिवाइड, दैट इज नॉन डिवीजन, दैट परमानेंट, एक्टिवली मीन्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है. विच आर फाउंड इन दोज जोन्स ऑफ द प्लांट वेयर ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस. और ये मेरिस्मेटिक टिश्यू उन जगहों पे पाया जाता है स्पेशली जहाँ पे ग्रोथ होता है. ठीक है, जहाँ पे वृद्धि हो रही है. नेचर इसका कैसा होता है. ओके, इट डिवाइड्स कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ अ प्लांट. गर्थ मीन्स लेंथ. सो ये क्या होता है, गर्थ मीन्स जो निचला हिस्सा होता है. ठीक है. तो इट डिवाइड्स कंटिन्यूसली टू हेल्प इन इंक्रीजिंग, क्योंकि हम इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, इसमें जो टिश्यू होते हैं एक्टिवली डिवाइड होते हैं और ये हेल्प करते हैं. जब एक कंटिन्यूस डिवाइड करता है, इसका नेचर ये है कि कंटिन्यूसली डिवाइड करना, और जब एक कंटिन्यूसली लगातार ये विभाजित, हिंदी के जो टर्म्स है बहुत डिफिकल्ट होते हैं इसलिए मोस्टली हम इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड्स. डिवाइड मतलब जब उसको विभाजित करता है, जब वो कंटिन्यूसली लगातार, तो क्या होता है, वो किसी भी पेड़ का उसके लेंथ में वृद्धि होगी, वो चौड़ा होगा, मोटा होगा. ठीक है, लोकल लैंग्वेज में बात करें. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं. So similar in structure and have thin cellulose cell wall. ये जो प्लांट सेल हैं उनका सेलुलोज से बने होते हैं. ठीक है. सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है, मीन्स एक समान. और थिन सेलुलोज सेल वॉल, उनके जो सेल वॉल हैं, ठीक है, जो भित्तियाँ हैं
कोशिका भित्ति उनको हिंदी में बोलते हैं, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है वो थिन सेलुलोज की बनी होती है। मेरिस्मेटिक सेल्स में भी स्फेरिकल, ओवल, इनका जो शेप है, ठीक है, स्फेरिकल हो सकता है। ओके, सर्कुलर और स्फेरिकल तो आप लोग को अंदाज़ा होगा। स्फेरिकल मिरर, जो मिरर आप यूज़ करते हैं, स्फेरिकल मिरर। ओवल शेप, अंडा का जो शेप है ओवल शेप। पॉलीगोनल्स, मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे शेप हैं, ठीक है। पॉलीगोनल मीन्स बहुत सारे एंगल्स हैं। रेक्टेंगुलर, आयताकार, ये हमारे जो नोटबुक की साइज़ है ये रेक्टेंगुलर है। इस टाइप के बहुत सारे शेप हैं। नेक्स्ट वन, मेरिस्मेटिक tissues are compactly arranged. Compactly means they are very tight. Okay, they are compactly arranged one after the other and do not contains any intercellular space between them. मैंने जैसे आपको बताया है उनका शेप सॉलिड, ओके, सॉलिड इन शेप। सो उनके पास बिल्कुल स्पेस नहीं होते, उनके जो आपस में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है बिल्कुल नहीं होता है आपस में। उनके सेल्स के बीच में थोड़ी भी स्पेस, थोड़ी भी जगह नहीं होती है। सो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, दैट्स वाई दे आर सॉलिड। Each merismatic cells contains dense or abundant cytoplasm, a single large nucleus. उनके जो प्रत्येक मेरिस्मेटिक जो सेल है वे कंटेन मतलब जो सेल्स होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म होते हैं। एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, उनके लोकेशन कहाँ है, ठीक है। सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज are found, okay, growth tissue, they are that merismatic tissues are growth tissue, they are also called growth tissue and are found in the growing region of the plant का जो growing region है वहाँ पे पाया जाता है। हम लोग शुरू से ही यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। According to their position in the plant, merismatics are apical, lateral and intercalary. As I told in the beginning, according to their position, their arrangement, they are divided into three types, that is apical, lateral and intercalary. First one, so this is a tip, topmost and down at the girth, root, that is apical merismatic, and this part is called lateral. We will study each and I'm just showing the location, and this is intercalary, okay, this part is intercalary. Node, you can see this is a node. Node is the which connects the leaf and the stem, okay. So first of all we will know about apical merismatic. These are situated at the tips of the root, stem and branches and leads to elongation. ये जो एपिकल मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है ये सिचुएटेड होते हैं कहाँ पे, टिप्स ऑफ द रूट, रूट के टिप्स में, निचले हिस्से में, ऐसे जो टिप्स हुआ इसको टिप बोलेंगे, ठीक है। ये सबसे निचले हिस्से में जो रूट, जो जड़ के सबसे निचला हिस्सा और जो स्टेम का भी बाहरी हिस्से और ब्रांचेस के जो हिस्से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके भी बता दिया है। और लीड्स टू एलोंगेशन, और उसके लंबाई, उसके लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, एपिकल मेरिस्मेटिक। नेक्स्ट लैटरल मेरिस्मेटिक, दीज आर फाउंड बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ द ट्रीज। सो लैटरल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, बार्क, इसके बीच में जो छिलके होते हैं, ठीक है, जो सेल वाल होता है बाहर का, जो सेल वाल जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सो इसका जो बार्क और वुड, जो ट्री का जो वुड और बार्क के बीच में लैटरल टिश्यू का मतलब पाया जाता है। Where it leads to the increase in thickness of the stem, और lateral tissue ही इसके thickness, जो stem होता है उसके thickness को, ठीक है, उसके जो मोटाई होती है, जो चौड़ा width होता है उसके increase मतलब उसको बढ़ाने में उसकी मदद करता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरकैलरी टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, तो दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। जैसे मैंने शुरू में बोला कि इंटरनोड एंड नोड आपने पढ़ा होगा, तो वो क्या है, द लीफ विच इज़ कनेक्टेड विद स्टेम, ओके, द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लीफ एंड ब्रांचेस इज कॉल्ड नोड एंड इंटरनोड। स्टेम ऑफ द ग्रासेस लाइक मिंट, दे हेल्प द ऑर्गन्स टू ग्रो इन द लेंथ। और ये जो इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जो इंटरनोड और नोड में पाए जाते हैं, उनके ग्रोथ में इनकी मदद करते हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही पढ़ा, वी आर स्टडिंग दैट इज एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन। सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इसके काम नहीं जानते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। सो वी हैव टू लर्न व्हाट इज द फंक्शन, ये काम क्या करता है। एक्ट्स एज मेरिस्मेटिक टिश्यू एक्ट्स एज अ
पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप, इसको हम लोग पेरेंट्स, ये सभी का पिता माना जाता है। पेरेंट्स मीन्स नॉट पिता, गार्डियन है, ठीक है। उन्हीं से बाकी जितने भी टिश्यू हैं, प्लांट टिश्यू, इन्हीं से उनका मतलब ओरिजिन हुआ है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पेरेंट टिश्यू। दिस टिश्यूज टेक्स पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, ये ग्रोथ के जो प्लांट्स के जो ग्रोथ होते हैं उनके फॉर्मेशन में, और जो न्यू सेल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में ये इनकी मुख्य भूमिका है। इट प्लेस अ मेजर रोल। With the help of meristem, plants continues to produce new leaves, branches, stem, roots, flower and fruits. So ये मेरिस्मेटिक टिश्यू का ही व्हाट वी से मेन रोल है। इन्हीं की हेल्प से, इनकी मदद से क्या होता है, प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, मतलब हमेशा ये लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू लीव्स का। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ समय के बाद न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स और फ्रूट्स मैच्योर होने के बाद क्या होता है, गिर जाते हैं, फिर न्यू फ्लावर्स आते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इसमें तो लगातार प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि न्यू फ्लावर आते रहें। तो किसकी मदद से होता है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड and I try to give proper notes. You may write this note, you may note down in your fair copy, and the next video I will upload later on. You just give me feedback, how was the video, and just write the comment. If you have any doubt, you may write it. Thank you and have a nice day.